જાપાન જેવા વિકસિત દેશોમાં ચલણી નોટો કેળના પેપરમાંથી બનાવવામાં આવે છે, તો ચીન જેવા દેશના ધાર્મિક ગ્રંથ પણ કેળના પેપરમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તો જૈન ધર્મના કેટલાક ધર્મગ્રંથો પણ કેળના કાગળ ઉપર લખવામાં આવે છે, કારણ કે કેળમાંથી બનાવેલા કાગળ વધુ મજબૂત હોવાથી તેને વધુ સમય સુધી સાચવી શકાય તેમ માનવામાં આવી રહ્યું છે. तो बनाना पेपर का जो आविष्कार है वो माना जाता है कि वो जापान में हुआ है और ये 700 वर्ष पुराना ये टेक्निक है पेपर मेकिंग का. तो जापानियों ने जो आविष्कार किया है और इस पे जो खोज किया है तो उससे कई सारे उनके जो रिसर्च पेपर है उनके अनुसार इस पेपर का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसन है, इसकी जो आयु है पेपर की, वो 200 वर्ष से 500 वर्ष तक का होता है. डिपेंड्स कि वो पेपर का प्रोसेस किस तरह से हुआ है. और इस पेपर का यूज़ ख़ास करके जापान में वहाँ की करेंसी के जो नोट है उसके पेपर को बनाने में यूज होता है. इसके पीछे एक कारण ये है कि ये पेपर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये डस्ट इसको अगर हम इसके मेकिंग प्रोसेस में अगर हम कुछ इसमें इसके गुणवत्ता को कंट्रोल कर सके तो ये डस्ट प्रूफ भी हो जाता है एक हद तक. तो जैसे हमारे इंडिया में जो करेंसी होता है उसका 5 से 10 साल बाद वो करेंसी हमें चेंज करनी होती है, वो बहुत ही ख़राब अवस्था उसकी हो जाती है. तो अगर हमारे देश में भी इस तरह के पहल किए जाएं और बनाना फाइबर का इस्तेमाल करके अगर हम नई चीज़ों में इसको हम अगर इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से इसमें इसका एक बहुत बेहतर फ्यूचर हम देखते हैं. धार्मिक ग्रंथों में भी इसका इस्तेमाल अभी लोग करते हैं. जैसे बुद्धिस्ट लोग अपने धार्मिक ग्रंथों में बनाना पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जो मुख्य रूप से चाइना और जापान के लोग इसको इस्तेमाल में लाते हैं. हमारे देश में भी कई सारे ऐसे धार्मिक संस्थान हैं जो चाहते हैं कि इस पेपर पे और अधिक रिसर्च करके और इसके गुणवत्ता को सुनिश्चित करें ताकि इसका भी इस्तेमाल वो अपने धार्मिक ग्रंथों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી, જેતપુર પાવી અને સંખેડા તાલુકામાં કેળની ખેતી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં થાય છે. ત્યારે કેળનો પાક ઉતારી લીધા બાદ કેળના થડનો કોઈ નિકાલ થતો નથી. કેળના થડનો ઢગલો કરીને રોડની ગટરોમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે, કાં તો તેને સળગાવી દેવામાં આવે છે, પણ તે બરાબર સળગતા પણ નથી. ત્યારે મૂળ પટનાના અને ઇન્ડિયન ક્રાફ્ટ એન્ડ ડિઝાઇનરના એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી મેળવનાર રવિરાજ જણાવે છે કે કેળના નકામા બની ગયેલા થડના વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ કાગળ બનાવી ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોને રોજગારી આપી શકાય તેમ છે. इसको अलग कर लेते हैं और इस तने से हम लोग इससे रेसा निकालते हैं. तो और इस रेसे को बाद में हम प्रोसेस करके इससे पेपर बनाते हैं. કેળના પાકને ઉતારી લીધા બાદ કેળના થડને ફેંકી દેવામાં આવે છે, કાં તો સળગાવી દેવામાં આવે છે. પરંતુ રવિરાજનું કહેવું છે કે કેળના થડમાંથી 500 વર્ષના આયુષ્ય ધરાવતા કાગળનું ઉત્પાદન કરી ગરીબ લોકોને રોજગારી આપી શકાય તેમ છે. રવિરાજ ઇન્ડિયન ક્રાફ્ટ એન્ડ ડિઝાઇનરના એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી મેળવ્યા બાદ રિસર્ચ કરી કેળના થડમાંથી, કુંવરપાઠુના પાનમાંથી અને મકાઈના રેસામાંથી હેન્ડલૂમ પેપર બનાવવાની રિસર્ચ કરીને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ભાષા વિકાસ સંસ્થાના સહયોગ વડે આ પ્રોજેક્ટનો વિકાસ થાય તે માટે અથાગ પ્રયત્નો હાથ ધર્યા છે. लोगों ने इससे पेपर बनाने का भी उपयोग में लाना शुरू किया है. ये कुछ इस तरह से इसका फाइबर हम लोग इसको आगे प्रोसेस करेंगे जिससे ये पेपर हम लोग बना सकते हैं. રવિરાજ જણાવે છે કે કેળના રેસામાંથી વિવિધ પ્રકારના કાગળ બનાવી શકાય છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં કેળની ખેતી થાય છે, જેના થડના રેસામાંથી બનાવવાનું રિસર્ચ કરી અમે તેજગઢ ભાષા કેન્દ્રની મદદથી આ પ્રોજેક્ટ પર કામ હાથ ધર્યું છે. કેળના થડના રેસા, કુંવરપાઠું અને મકાઈના ભૂસાનું મિશ્રણ કરી વિવિધ પ્રકારના કાગળ બનાવી શકાય છે. હાલ અમે કોઈપણ પ્રકારના મશીનરીનો ઉપયોગ કર્યા વગર કેળના થડમાંથી રેસા કાઢી એમાં કુંવરપાઠાના પાનમાંથી રેસા કાઢી આ રેસાને બારીક બનાવીને 100 ડિગ્રીના તાપમાને બાફીને
એના મિશ્રણમાંથી કાગળ બનાવવાના પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટથી છોટાઉદેપુર જિલ્લાના આદિવાસી લોકોને વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાના પેપર્સ બનાવવાના પ્રોજેક્ટથી રોજગારીની તકો વધારી શકાય છે. આમ તો મશીનરી દ્વારા ઓછા માણસોથી વધુ ઝડપી અને વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે, પરંતુ આ પ્રોજેક્ટથી લોકોને રોજગારી આપવાનો અને શુદ્ધ હેન્ડલૂમ કાગળના ઉત્પાદનના આશય સાથે માનવ શ્રમ વડે જ ઉત્પાદન કરવાનો હેતુ હોવાથી કોઈપણ પ્રકારની મશીનરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી. આ પ્રોજેક્ટ આગળ જતા ભવિષ્યમાં બનાના પેપર્સ બનાવવાની તાલીમ આપીને વધુ લોકોને રોજગારી મળે તેવા આયોજનો પણ હાથ ધરવામાં આવનાર હોવાનું રવિરાજ જણાવ્યું હતું. तो मेरा नाम रवि राज है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिज़ाइन से मास्टर्स कर रहा हूँ और अभी मेरे फाइनल ईयर मास्टर्स में ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के दौरान मैं यहाँ तेजगढ़ में आदिवासी एकेडमी है, भाषा पब्लिकेशन एंड रिसर्च सेंटर इसकी स्थापना की है. तो मैं इसके अंतर्गत मैं अभी अपना बनाना फाइबर से पेपर बनाने का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जिसमें ये जो संस्था है वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है. और इससे मैंने विगत कुछ महीनों में मैंने इससे काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ के अलग अलग कलर शेड्स के मैंने पेपर भी डेवलप किए हैं. और इस प्रोजेक्ट का एक खासियत ये है कि ये प्रोजेक्ट फुल्ली हैंडमेड है और ऑर्गेनिक फ्री है. ये फुल्ली हैंडमेड है और ऑर्गेनिक है. इसमें कोई भी तरह का किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं हम लोगों ने किया है. किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी या मशीनरीज हमने इस्तेमाल नहीं किया है. ये पूरे तरह से हैंडमेड है और ऑर्गेनिक है. तो जो यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं जिनके पास सीमित संसाधन है, तो हम लोग का ये प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य ये है कि हम उनको ये बताना चाहते हैं कि आप सीमित संसाधन में आपके पास आप जो खेती करते हो, केले की जो आप खेती करते हो, तो उससे आप कैसे अधिक मुनाफा कमा सकते हो. तो ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक आइडियल के रूप में एक आदर्श के रूप में उनको मुझे उनके सामने ले जाना है, ताकि उनके लिए एक नया रोजगार का अवसर उनको मुहैया हो सके. ज़्यादातर यहाँ के आदिवासी जो मुझे पता चला यहाँ के लोगों के द्वारा कि लोग पलायन कर जाते हैं दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में, और वहाँ पे उनको उतना अवसर नहीं मिलता है काम करने का, तो वो अपने घर पे रह करके ये इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये प्रोजेक्ट जो है वो इसका एक मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है कि कैसे यहाँ के लोग के साथ मिल करके यहाँ के लोग के लिए काम करें. तो अब मैं बात करता हूँ कि हम लोग यहाँ पर कैसे पेपर बनाते हैं. तो सबसे पहले आसपास जो यहाँ पे खेती होती है बनाने का, तो उस बनाना का जो वेस्ट जो होता है, केला निकलने के बाद ये इसका जो तना होता है वो लोग उसको बेकार समझते हैं और उसको वो फेंक देते हैं या फिर उसको मिट्टी में ऐसे उसको मिला देते हैं, उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत ही सक्सेसफुल नहीं है. तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके बारे में स्टडी किया और इसके साथ में हम इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखते हुए हमने सबसे पहले किया कि जाकर के हमने किसानों से बात किया, उनसे बनाना का जो वेस्ट उनका है वो हमने यहाँ पे एकेडमी में मंगवाया. और उस वेस्ट से हमने सबसे पहले उसके जो बाहरी उसका जो आउटर लेयर है उस स्किन को हमने सेपरेट किया. अलग अलग करने के बाद उस बाहरी परत से हमने रेशा निकाला. उस रेशे को हमने बॉईल किया 100 डिग्री सेल्सियस में विथ सोडा ऐश के साथ, और उसको 2 घंटे तक वॉश करने के बाद वो फाइबर हमारा पल्प बनाने के लिए रेडी हो जाता है. तो बाद में जब वो रेडी हो गया और वो हम उस फाइबर को हाथ के द्वारा उसका बीटिंग करते हैं. बीटिंग एक सबसे बड़ी जटिल प्रक्रिया है जो कि पेपर के क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि पेपर का क्वालिटी कैसा होने जा रहा है. तो इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है. इसमें 2 से 3 दिन, कभी कभी तो अगर मटेरियल है तो इसमें 1 सप्ताह लग जाता है. तो हम लोग बहुत ही इसमें टाइम दे करके इसका प्रोसेस कर रहे हैं. तो लेकिन फ़ायदा इसके पीछे ये है कि हम कोई
मशीनरीज यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारा जो पेपर है वो पूरा हैंडमेड बन सकता है। तो अब उस जो हमारा पल्प तैयार हो गया बीटिंग के बाद, उस पल्प को हम पानी में मिक्स करते हैं और उससे हम लोग लकड़ी का फ्रेम हमारे पास है, जिससे हम उससे पेपर शीट तैयार करते हैं। पेपर को जब वो शीट फॉर्म हो जाता है उस लकड़ी के ढांचे पे, तो फिर हम उसको धूप में सुखाते हैं। और धूप अगर अच्छी रही तो वो 2 से 3 घंटे में सूख जाता है। अगर धूप अच्छी नहीं रही तो उसमें पूरा दिन भी लग सकता है। तो उसके बाद वो पेपर हमारा तैयार हो जाता है।